Good afternoon and a very warm welcome to today's training. First of all, I hope you're all doing great. You are keeping safe and everyone around you is doing fine. Uh, just give me a second. Yeah, we have done few trainings already for this month और अभी इस महीने में भी just a second. So for this month as well, we have few trainings pending. आज का जो training होगा, it will be primarily about lead ads and conversion. Then we have a training following this one, जो कि होगा online recruitment को लेके, and this time I'll be sharing some additional inputs as compared to what we did previously. और फिर एक नया ट्रेनिंग भी होगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ 28th को फ्राइडे, जिस दिन हम बात करेंगे लीडरशिप डेवलपमेंट की. तो आई बिलीव फ्रॉम टुडे एंड गोइंग फॉरवर्ड टुमारो एंड देन ऑफ कोर्स ऑन फ्राइडे वील हैव 3 इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग्स जो कि एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कोइंसाइड हो रही है एंड दे मेक सेंस. सो आई विल एक्चुअली रिकमेंड कि आप प्लीज इन ट्रेनिंग्स को अटेंड कर लेना. एंड आई हैव बीन गेटिंग लॉट ऑफ रिक्वेस्ट अभी इंडिविजुअल सेशंस के लिए. Lot of people are reaching for me network or team based trainings, which in most of the cases does not get possible. तो what I will do is for the month of June मैं अपनी सभी trainings Zoom पे करूँगा. So I'll be doing my trainings on Zoom because there are a lot of brand partners जो हमें join नहीं कर पाते हैं teams पे. तो अगले महीने मैं Zoom पे अपनी सारी trainings करूँगा and I'll be picking topics जो सबके लिए बहुत important होंगे. Some topics which I'll be keeping very basic so that जो भी हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं they get the right inputs, right information. And of course some trainings will be advanced and which makes sense for each one of you. तो accordingly फिर आप उन trainings का part बन सकते हैं. तो you will get the calendar for the month of June really soon. ओके आज की ट्रेनिंग लीड एड्स एंड कन्वर्शन को लेके है. सो विल टॉक अबाउट हाउ टू सेट अप एन एड विच इज रियली इम्पैक्टफुल, how to set up an ad which has right ingredients, and also हम उसको फिर कन्वर्शन के लिए कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. मैंने अपनी ट्रेनिंग्स में बार बार एक चीज पे फोकस किया है कि जो प्रोस्पेक्टिंग है और रिक्रूटमेंट है ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. दे आर कनेक्टेड. I cannot have a strong recruitment funnel if I do not know where I am prospecting, how I am prospecting, right? Using what media I am prospecting, what is my actual target audience. ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, तब जाके आपके एड्स पे कन्वर्शन बेटर आ जाता है. तो हम डेमो ले लेंगे और उससे पहले जस्ट अ सेकेंड मैं एक बार कंफर्मेशन लेता हूँ जस्ट बी श्योर. अगर आप मुझे यहाँ पे टेक्स्ट ड्रॉप कर पाएंगे कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, so that I can check the Q&A. If you can see the screen and you can hear me as well. So I will just need a comment from any one of you and then I can proceed with the actual training. Can someone please confirm me? Or also अगर कोई somebody is okay giving me the Facebook email and password, then I can use a different account for a demo जिनका ad tool अच्छे से functional हो. So you can drop me a text here using whatever is your Facebook login credential, आपका user ID और आपका password. तो आप मुझे यहाँ पे email password दे देना so I can pick any random account, फिर I can use that for a demo today. Okay, so let me just get started. I've got the confirmation. So जब हम lead ads की बात करते हैं तो rather before I set up an ad, I have a lot of things to do. यानी मुझे पहले तैयार रखना है. Just that if somebody is going on a war, वो तो ऐसे नहीं जाएंगे ना. They have their entire gear ready. कि ये चीज मुझे साथ लेके जानी है, ये चीज मुझे साथ लेके जानी है. Why? Because every element is necessary. Then only you can emerge as a winner. Then only you have chance to be successful out there. बिना तैयारी के, बिना प्लानिंग के, बिना एक प्रॉपर रोड मैप के, always it gets difficult. It gets very difficult to recruit those people. क्योंकि जब मैं प्लान के साथ काम करूंगा things always fall in place.
सो जब भी मुझे ऐड चलाना होता है, मैंने बार बार इन चीजों पे फोकस किया है, और यहाँ पे मैंने अपना ईमेल आईडी भी दिया है। तो इन केस somebody wants to be part of the WhatsApp group, तो आप इस वाली ईमेल आईडी पे मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं बाद में भी शेयर कर लूंगा, so that you can have access to the recorded versions. ओके, तो जब हम लीड एंड कन्वर्शन की बात करते हैं और जब हमें एक एड सेट करना होता है, जो हमारा सबसे पहला एलिमेंट होता है एड के लिए, वो कौन सा एलिमेंट होता है? सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या चीज होनी चाहिए? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो सबसे पहली पहली चीज मेरे दिमाग में होती है वो होता है टारगेट ऑडियंस। यानी मैं किन को टारगेट कर रहा हूं, मतलब हु इज माय एक्चुअल टारगेट ऑडियंस, ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, क्या मेरे टारगेट सिर्फ मैन है? क्या मेरे टारगेट सिर्फ वुमेन है? क्या जो मेरा टारगेट ऑडियंस है जिनके साथ मुझे काम करना है वो दोनों मैन एंड वुमेन है? क्यों? क्योंकि ये चीजें फिर मैटर करती हैं कि आप उनको प्रमोशन के लिए, आप उनको अट्रैक्ट करने के लिए अपने बिजनेस की तरफ क्या चीजें दिखाओगे, राइट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड कि मेरा एक्चुअल टारगेट ऑडियंस कौन है। नाउ फॉर इंस्टेंस आपने क्लासिफाई किया आपका टारगेट ऑडियंस वुमेन है, देन फिर आप थोड़ा और एक स्टेप आगे जाओगे। ओके, इफ माय टारगेट ऑडियंस इज वुमेन, व्हाट काइंड ऑफ वुमेन? क्या वो पढ़ी लिखी वुमेन होनी चाहिए? क्या वो ऐसी वुमेन होनी चाहिए जो लाइक जॉब करती है कहीं पे? क्या वो प्राइमरली स्टूडेंट होने चाहिए जहां पे मैं ज्यादा से ज्यादा रिक्रूट या ज्यादा से ज्यादा मिलेनियल्स को अट्रैक्ट करूं बिजनेस की तरफ? आई एम नॉट सेइंग कि आप मल्टीपल लोगों को टारगेट नहीं कर सकते, आप अलग अलग एड सेट करो इन दैट केस, बट इट ऑलवेज अ गुड आइडिया टू फिल्टर योर ऑडियंस। क्यों? क्योंकि जितना आप ऑडियंस अच्छे से फिल्टर करेंगे उतना ही फेसबुक के लिए आसान हो जाता है आपके एड को ऑप्टिमाइज करना। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। अगर समझो कि लाइक दिस रूम इट्स फुल ऑफ बलून्स, ओके, और उसमें क्या है कि मैंने येलो कलर के एक दो बलून रखे हैं और बाकी बहुत मल्टीपल कलर के बलून है, और मैं कहूंगा वहां पे दो बलून है, आप उनको प्लीज निकाल के लेके आ जाओ येलो कलर के। बिकॉज देर आर सो मेनी कलर्स आउट देयर, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग फॉर यू टू एक्चुअली फाइंड कि यार ये येलो कलर के दो बलून कहां पर है, राइट? ऑन द contrary, नाउ लाइक आई एम सेंडिंग यू इनटू द रूम बी, जहां पे क्या है, जहां पे सिर्फ रेड कलर के बलून है और दो येलो कलर के बलून रखे हुए, एंड आई एम एक्चुअली टेलिंग यू कि लाइक वहां से निकाल के लेके आ जाओ। सो वायर विल बी इट कन्वीनियंट फॉर यू इन द रूम 1 और रूम 2? रूम 2 में। क्यों? क्योंकि वहां पे डिस्टिंक्ट है, इजी है, क्योंकि वहां पे हम बिल्कुल क्लियर कट, इतना कुछ डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, इतने कुछ बाकी कलर्स नहीं है। तो फेसबुक पे भी क्या होता है, जब हम ऑडियंस सेट करते हैं तो हमारे दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि फेसबुक को कहें कि हमें ये लोग दे दो। जब फेसबुक को इतनी आसानी से पता चलेगा कि ऐसे लोगों को लेके आना है, तो बहुत अच्छी चीजें हो जाती है आपके लिए। यूर एड गेट्स ऑप्टिमाइज्ड, आपका लीड कॉस्ट कम हो जाता है और आपको बेटर क्वालिटी लीड्स मिलती हैं जैसे लोग आप चाहते हो। और फेसबुक के लिए आसान ऐसे लोगों को ढूंढना, क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहते हो कि मुझे ऐसे लोग दे दो। लेकिन अगर मैं अपनी टारगेट ऑडियंस को बहुत कॉम्प्लेक्स बनाता हूं या अपनी ऑडियंस में कोई फिल्टर ही नहीं डालूंगा, तो इन बोथ केसेस इट माइट बी वेरी प्रॉब्लमैटिक। तभी एडवर्टाइजिंग में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है। अरे लीड्स तो आती है, कन्वर्शन नहीं हो रहा, मैंने तो एडुकेशन मांगी थी लेकिन वहां से तो एडुकेशन वाले बैकग्राउंड ही नहीं आए थे। तो व्हाई? बिकॉज मे बी आई एम नॉट फिल्टरिंग इट राइट। तो बहुत सारी चीजें जरूरी होती है कंसिडर करना जब भी हम एड सेट करते हैं। द फर्स्ट वन इज टारगेट ऑडियंस, एंड देन ऑफ कोर्स लाइक आपने वुमेन चूज किया, क्या वो लाइक पैन इंडिया में रहती है वो वुमेन, या फिर आप साउथ इंडिया में कहीं स्पेशली टारगेट कर रहे हो अपने ऐड को, या मे बी आप पंजाब एरिया में अपने ऐड को टारगेट कर रहे हो, या मे बी लाइक आप वेस्ट में कहीं पे ऐड चला रहे हो। व्हाई? बिकॉज देन यू कैन यूज द relevant content, relevant media type. So it's very important to understand those small nuances जो कि आपके कंटेंट में इसको हम कहते हैं ना, उर्दू में तो हम कहते हैं चार चांद लगा देते हैं, लाइक which beautifies your content, which enhances the quality of your content. ये छोटी छोटी चीजें आप जब पकड़ोगे तो आपका कंटेंट बहुत ही टॉप नॉच हो जाएगा और आप बहुत अच्छे लीड्स लेके आ जाओगे अपने बिजनेस के लिए। सो द फर्स्ट वन इज टारगेट ऑडियंस। जब मैंने टारगेट ऑडियंस भी
अंडरस्टैंड कर लिया, देन व्हाट इज द सेकंड बिग थिंग जो मेरे एड के लिए बहुत बहुत इंपैक्टफुल होती है, दैट इज मीडिया। क्या मैं इमेज यूज कर रहा हूं? अभी मैं बस 2 टाइप के मीडिया लूंगा जो कि बहुत चलते हैं, और वीडियो लूंगा। वीडियो सबसे ज्यादा चलते हैं। नाउ लाइक मैं कौन सा मीडिया यूज कर रहा हूं? क्या मैं एक इमेज बनाऊंगा? अगर मैं इमेज बनाऊंगा, क्या मेरा इमेज स्क्वायर रहेगा, या मेरा इमेज लाइक रेक्टेंगुलर रहेगा? क्या मैं वीडियो बनाऊंगा? अगर मैं वीडियो बनाया तो क्या मैं 15 सेकंड्स का बहुत ही इंटरेक्टिव शॉर्ट वीडियो बना लूं which attracts people to my business, right? There are a lot of things which we need to ask ourselves. तो मीडिया भी मैंने चूज किया, और मीडिया में कैसे बनाऊंगा? अपनी टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रख के। यानी अगर मेरा टारगेट ऑडियंस वर्किंग वुमेन है तो मैं मीडिया में भी प्रेफर करूंगा कि प्रोफेशनल अटायर हो, लैपटॉप साथ में हो, राइट? व्हाई? बिकॉज देन इट विल बी मोर रेलिवेंट। अगर मैं होम मेकर को रीच आउट कर रहा हूं प्राइमरीली, देन आई विल मे बी चूज मोर लेड बैक काइंड ऑफ इमेज, जहां पे होम मेकर आराम से एक homely dress में and they are working. Why? Because these things relate to people and people say हाँ ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, घर पे बैठ के जो भी हम पजामा पहनते हैं उसी में बैठ के काम भी करो. What is better than that? So it's all about understanding the psychology of the target audience कि वो किस चीज से relate कर पाएंगे. Student, you need more laughing faces, you need more faces जो full of energy and vibrance, so हो trendy हो. Why? Because that is how students will see your business opportunity. So जानना बहुत जरूरी है कि इनको रीच आउट कर रहे हैं. जब वो टारगेट ऑडियंस दिमाग में आ गई, देन वी नीड टू सेट अप अवर मीडिया अकॉर्डिंगली कि इनको ये मीडिया बेचते हैं. एंड उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है कैप्शनिंग. कैप्शनिंग लॉन्ग टाइप की भी हो सकती है, यानी बड़े बड़े कैप्शन आप रख सकते हो. आप छोटे कैप्शन भी रख सकते हो, आपके पास चॉइस है. मैं रिकमेंड करूंगा छोटा क्रिस्प टू द पॉइंट कैप्शन रखो. बट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सबसे ज्यादा एड रिजेक्ट होते हैं या तो वो मीडिया की वजह से होते हैं, लेकिन मीडिया से भी ज्यादा जो एड रिजेक्ट होते हैं वो कैप्शनिंग की वजह से होते हैं. बहुत बार लोग क्या करते हैं, अपनी कैप्शनिंग को सीरियसली नहीं लेते हैं. ग्रामेटिकल एरर हो गया, स्पेलिंग एरर हो गया, इधर उधर के एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दिए, या ऐसा कोई टर्म लिखा, मेक मनी लिखा, अर्न इनकम लिखा. तो जब हम कैप्शन में इतनी कोई ऐसा चीज मेंशन करता हूं, इमीडिएटली फेसबुक क्या करेगा, मेरे एड की परफॉर्मेंस को हैम्पर करेगा. या बिकॉज ये रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट है और इसमें से काफी कुछ कंटेंट जो है वो प्रोहिबिटेड कंटेंट है, तो दोनों केसेस में मेरा एड जो है वो इंपैक्ट हो जाएगा. और बहुत सारे केसेस में फिर आप देखते हो आपके पेमेंट मेथड्स फेल होते हैं, आपका एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, आपको टेम्परेरी ब्लॉक या बैन किया जाता है. इट इज बिकॉज ऑफ दो स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो हम यूजुअली इग्नोर करते हैं. यूजुअली लोग क्या चाहते हैं, अरे चलो ठीक है कहीं से भी अप्रूव हो जाए और लोग वहां पे मुझे रिप्लाई करें, लीड्स आ जाएं. एंड मैंने क्योंकि मैं ये कितना व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग विद सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि इतने गंदे गंदे एड भी अप्रूव हो जाते हैं, फिर वहां पे कमेंट्स भी भर भर के आ जाते हैं, बट आप देखो 2 महीने बाद वो एड अकाउंट पूरी तरह से बैन हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि फेसबुक मॉनिटर करता है सारी चीजें. तो यहाँ पे भी शॉर्टकट नहीं ढूंढना है. आप फेसबुक पे हो, आप इंस्टाग्राम पे हो, आप लिंक्डइन पे हो, यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म को एथिकली यूज करना है, वैल्यू क्रिएशन पे फोकस करना है. ऑटोमेटिकली चीजें आपके लिए बेटर हो जाएंगी, आपको बेटर क्वालिटी लीड्स मिलेंगी, आपको बेटर क्वालिटी रिक्रूट्स मिलेंगे. लेकिन अगर मैं शॉर्टकट ढूंढ रहा हूं, पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर रहा हूं, आई एम गेटिंग डेस्परेट एंड आई एम डूइंग एनीथिंग, देन इवेंचुअली इट कम्स बैक टू बाइट मी, मुझे प्रॉब्लम हो जाती है. देन मैं देखता हूं कि अरे फेसबुक से तो अब कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहे हैं. ऐसा नहीं है, फेसबुक पे भी बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी रिजल्ट आ रहे हैं. आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम कनेक्टेड है, you can do wonders if you do your business the right way. Most important चीज है बजटिंग एंड ड्यूरेशन. ये वाला जो है ये थोड़ा सा इसको मैं रखूंगा दूसरे कलर में फॉर अ रीजन, बिकॉज इट्स नॉट वेरी वेरी रेलिवेंट. व्हाई? क्योंकि बजट एंड ड्यूरेशन लोग यूजुअली पूछते हैं कि सर दिन का कितना बजट रखूं, क्या दिन का 200 रुपए खर्च करूं, दिन का 3000 खर्च करूं, दिन का 500 खर्च करूं. सी, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है.
फॉर इंस्टेंस लाइक अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको दिन की 10 लीड चाहिए, तो आप अकॉर्डिंगली बजट सेट करो। अगर आपको पता चल जाता है कि 500 इन्वेस्ट करने में पर डे आपकी 20 लीड्स तक आती है, तो आप 500 पर डे का बजट रखो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो 40 लीड चाहिए, देन आप 1000 रुपए रखोगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो 80 लीड चाहिए, तब आप 2000 2500 रुपए रखोगे पर डे का बजट। तो जो बेसिकली आपका बजट एंड ड्यूरेशन होता है, वो टोटली डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट कितना है, और अकॉर्डिंगली फिर आप अपनी बजटिंग सेट करते हो। जैसे इट्स वेरी कनेक्टेड। जैसे यहाँ पे ना, यू हैव टू थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर, यू हैव टू थिंक लाइक एन बिजनेस पर्सन राइट अवे, कि मुझे जैसे नेक्स्ट लेवल करना है, नेक्स्ट लेवल करने के लिए जैसे आपको गोल्ड डायरेक्टर टाइटल करना है, राइट? नाउ यू नो दैट कि गोल्ड डायरेक्टर करने के लिए आपके पास इतने क्वालिफाइड रिक्रूट होने चाहिए। जैसे आपको समझो कि 50 क्वालिफाइड रिक्रूट्स की जरूरत है जो आपके साथ अच्छे से काम करें। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जो ऑर्डर प्लेस करेंगे, जो सिस्टम में काम करना शुरू करेंगे, और आपको लाइक रिक्रूट्स की जरूरत है जिनको आप ग्रो करो अपने नेक्स्ट टाइटल के लिए। नाउ यू आर लुकिंग एट 50 क्वालिफाइड रिक्रूट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन 50 रिक्रूट लाने के लिए आपको कितनी लीड्स लेके आनी पड़ेंगी? 100 में तो नहीं होगा। 100 लीड्स आपने जनरेट करी और 50 लोग रिक्रूट होंगे, बहुत टफ है। और वो भी ऐसे रिक्रूट जो काम करें, क्योंकि लीकेज भी होता है, कुछ लोग काम करना बंद कर देते हैं, कुछ लोग कन्वर्शन के बाद फॉलो अप में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो कंसिडरिंग ऑल दोस न्यूएंसेस, आपको समझो कि 50 क्वालिफाइड रिक्रूट की जरूरत है, और आप कहते हो कि ठीक है 50 के लिए मुझे एटलीस्ट समझो कि मेरे पास 100 रिक्रूट होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिक्रूट्स। और उससे पहले भी कुछ लीकेज वीकेज होगा, मे बी 100 लोग बाहर भी उससे पहले भाग जाएंगे। तो आपने कहा कि ठीक है अप टू 200 आपको रिक्रूटमेंट लेके आना है। तो 200 रिक्रूट्स के लिए या 100 रिक्रूट्स के लिए आपको लीड्स कितनी चाहिए होंगी? डेफिनेटली अ लॉट मोर। वो आप देखोगे कि आपका कन्वर्शन रेशियो कितना है। अगर आपका 20% है, देन अकॉर्डिंगली आप नंबर डिफाइन करो, अरे मुझे तो 150 लीड, मुझे तो 200 लीड, मुझे तो 400 लीड चाहिए, मुझे तो 1000 लीड चाहिए, राइट? वो नंबर वैसे ही वेरी करेगा जैसे आपने अपना बिजनेस, अपनी ग्रोथ प्लान करी है, एंड देन यू विल डिसाइड कि आपको कितनी लीड चाहिए बिजनेस के लिए। नाउ यू हैव अ वेरी क्लियर विजन कि आपको महीने की समझो 200 लीड चाहिए, ठीक है? नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि आपको महीने में 200 लीड जनरेट करनी है, आप अपना बजट सेट करोगे कंसिडरिंग कि आपको पर लीड कितने की मिलेगी। और वो मैं अभी आपको बता देता हूं कि लीड कॉस्ट कैसे वैरी करता है और पर लीड आइडियली कितने बजट में आपको पड़ेगी। बट दैट इज हाउ यू विल आइडियली वर्क योर एडवर्टाइजिंग, दैट इज हाउ यू विल वर्क योर रिक्वायरमेंट, कि मुझे नेक्स्ट लेवल के लिए, मुझे ग्रोथ के लिए कितना आइडियल लीड काउंट चाहिए, और देन अकॉर्डिंगली आप एडवर्टीजमेंट के लिए अपना बजट सेट करोगे। ओके, तो दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। नाउ यहाँ पे आई थिंक एक बार लास्ट टाइम मैंने ट्रेनिंग दी थी, तो यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट बनाया था। नाउ इफ यू लुक एट दिस टेम्पलेट, इट्स अ वेरी सिंपल टेम्पलेट विच I actually made for target audience क्या है यहाँ पे मेरा mothers, and here I am reaching out to mothers by telling them कि वो अपना career and अपना motherhood balance कर सकते हैं, right? यहाँ पे join my online business, और side में I am putting a relevant picture of a young mom, and she has a like newly born baby, just maybe couple few months. Now what is happening is that यहाँ से मेरा जो target audience है, it's ideally young mothers, and I want to tell them कि see, अगर आपने जॉब की वजह से आपने जॉब छोड़ी है बिकॉज ऑफ दी मैटरनिटी, और अभी आप एक यंग मॉम हो, तो आप आराम से मेरे साथ एक अच्छा करियर सेटअप कर सकती हैं और अपने मदरहुड को भी बैलेंस कर सकती हैं, because that is the primary concern a mother has. Once they are done with the delivery and they have time, they want to engage that time into something productive, that is they want to engage that time into something meaningful, और ये बहुत अच्छा टाइम है उनको रीच आउट करने का। दैट इज वाई मैं अपना टारगेट ऑडियंस भी एग्जैक्टली सेट करूंगा, जहां पे मेरा प्राइमरी फोकस होगा पेरेंट्स, और पेरेंट्स में मैं क्लॉज लगा दूंगा जैसे 0 to 1 ईयर्स का बेबी। तो मैं क्या हो रहा हूं, मैं फेसबुक को डायरेक्टली बोल रहा हूं यंग मदर्स चाहिए मुझे। तो जो जो भी मेरे टारगेट एरिया में फिर वो यंग मदर फॉल करेगी, उनको मेरा एड दिखेगा।
मेरे ऐड में उनको रेलिवेंट चीज दिख रही है। अच्छा, यहाँ पे मैं अपना मदर हुड और करियर को बैलेंस कर सकती हूँ। दिस लुक्स नाइस, और ये ऑनलाइन है यानी घर बैठे काम होगा। ओके, लेट मी रीच आउट टू दोज पीपल। सो एड का जो बेसिक काम होता है वो होता है एक इम्पल्स क्रिएट करना, सो दैट योर टारगेट ऑडियंस रिलेट्स टू दैट पर्टिकुलर कंटेंट पीस जो आप उनको बेचते हो। ओके, नाउ लेट्स लाइक टेक दिस एग्जांपल ओनली। अभी मैं इसको डाउनलोड करता हूं। तो ये मैंने कैनवा में बनाया था, सो लेट मी जस्ट डाउनलोड पेज नंबर 3। इसको हम करेंगे डाउनलोड इसमें पीएनजी में। आप देखो यहाँ पे वीडियो भी बना सकते हो, बहुत अच्छी चीजें कर सकते हो जो मैंने ऑलरेडी आपको कैनवा पे ट्रेनिंग्स में दिखाया है। बट अभी के लिए लेट मी जस्ट लाइक सेटअप एन एड, एंड आज हम टारगेट करेंगे यंग मदर्स को। तो यहाँ पे हम ऑल न्यूएंसेस डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ से हम फिर टारगेट कर सकते हैं, कौन कौन सी वेरिएशन हम अपनी टारगेट ऑडियंस में लेके आ सकते हैं, एंड देन इट विल बिकम easier for us to create our ideal kind of target audience. ओके, ये हमारा डाउनलोड हो गया। जो भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आई एम गेटिंग सम क्वेरीज एंड ऑल, उनको मैं एड्रेस कर लूंगा। सो अभी लेट मी जस्ट लॉग इन टू दी अकाउंट, और मैं अभी आपको डेमो दिखाता हूँ फेसबुक। I have got very plenty of email IDs and passwords. मुझे WhatsApp पे भी एक आया है, which is quite easy for me to just use it from here. So let me just log in. अगर आपका टू स्टेप ऑथेंटिकेशन है तो आपको अप्रूव भी करना पड़ेगा कि ओके इस ओके okay, sorry. Thank you विवेक for sharing the details and making it easier. मेरा एक्चुअली खुद का अकाउंट ब्लॉक हो चुका है ऐड वाला, क्योंकि मैं इतने सारे डेमो देता हूं, बट आई हैव नेवर रन एन एक्चुअल एड। तो फेसबुक हैज रेस्ट्रिक्टेड मी, तो आई कैन नॉट एक्चुअली लाइक हैव द कंप्लीट सेटअप फ्रॉम देयर। तो अभी हम ये अकाउंट यूज करते हैं डेमो के लिए, और आज हम एक मैसेज ऐड का डेमो देखते हैं, बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ बेनिफिट्स जो मैं अलोंग विद द ट्रेनिंग एक्सप्लेन कर लूंगा। तो सबसे पहले हम एड्स मैनेजर में जाएंगे, एंड देयर आर लॉट ऑफ वेज हाउ डू वी गो टू एड्स मैनेजर। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी हैं। नाउ आई एम इनटू एड, और यहाँ पे अगर आप देखोगे आपका जो एड है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका एड मैनेजर है। इफ यू लुक एट इट लाइक व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू इट हैज टू ऑफर, देन आई एम श्योर कि यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें करोगे। अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप वेबसाइट पे लोगों को भेज सकते हो। आपको अपने पेज के लिए कम्युनिटी बनानी है, यू हैव टू गेट मोर एंड मोर लाइक्स, देन वो भी आप कर सकते हो।
आप इवेंट को क्रिएट करके प्रमोट कर सकते हो, आप अपने कंटेंट को बूस्ट एंड प्रमोट कर सकते हो। अगर आप वीडियोस बनाते हो तो आप उनको सेपरेटली ऑप्टिमाइज कर सकते हो सो दैट मोर एंड मोर पीपल व्यू योर कंटेंट। देन लीड जनरेशन में आपके पास दो चीजें आती हैं अभी। एक, आप एक कॉन्टैक्ट फॉर्म सेट कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास ऑप्शन आता है कॉल रखने का। तो फॉर इंस्टेंस लाइक ये ऑप्शन फेसबुक ने क्यों रखा? क्योंकि आजकल क्या होता है, जब हम लोगों का डिटेल लेते हैं तो लॉट ऑफ द टाइम्स वी सी दैट लोग हमारा फोन नहीं उठाते हैं। लेकिन जब आप कॉलिंग का ऑप्शन रखते हो तो वहीं से लोगों के पास ऑप्शन आता है कि वो हमें कॉल करेंगे। तो समझो कि मेरा एड 100 लोगों ने देखा, 100 में से 20 लोगों ने कहा अरे चलो बात करके तो देखते हैं, तो वही 20 लोग इंटरेस्टेड होते हैं। तो लीड जनरेशन में हमारे पास वो दो ऑप्शन है कि हम कॉन्टैक्ट फॉर्म सेट कर सकते हैं और हम एक कॉल नाउ का भी ऑप्शन रख सकते हैं जहां पे डायरेक्टली हमारे मोबाइल पे कॉल आएगा। एंड देन मैसेजेस में हम क्या कर सकते हैं, हम एक टेक्सचुअल ऐड रख सकते हैं, यानी जो भी आपका कन्वर्शन है इट विल हैपन ऑटोमेटिकली। आप अपना टेक्स्ट बेस्ड टेम्पलेट, आप वहां पे वीडियो इमेज सेटअप कर सकते हो, आपका चैट सेटअप हो सकता है और ऑटोमेटिकली आप लोगों से वहां पे कन्वर्सेशन करोगे इवन व्हेन यू आर बिजी। आप सो रहे हो, आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, यहां से लीड्स के साथ बात बहुत अच्छे से हो रही है। ओके, नाउ फॉर इंस्टेंस लाइक आज हमने एक ऐड डिस्कस किया है, तो आप फिर ऐसे आइडिया लेके अपने टारगेट ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट, अच्छा अच्छा वेलकम मैसेजिंग या रिस्पॉन्स सेटअप कर सकते हैं। तो लेट्स क्विकली सेटअप पर डेमो। नाउ ये वाला मेरा मैसेज ऐड है, तो सबसे पहले नाम जो है वो ऑप्शनल है, बट मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप नाम दिया करो अपने एड सेट्स का। जैसे ये ऐड है young mothers, and Manisha, Vivek and Manisha, they want to run it for say UP per se because they are from UP, तो अभी मैं UP मेंशन करता हूँ सारा। तो मैं कंटिन्यू करूंगा जब मैंने एड सेट को यहाँ पे नाम दे दिया, और यहाँ पे अगर मैं डेट भी डाल दूं तो दैट विल बी अ गुड आइडिया कि किस दिन रन हुआ था, बट आई थिंक दैट्स अगेन ऑप्शनल। उसके बाद यहाँ पे देखो, जैसे मेरा ऐड है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ है, आई विल नॉट टच ए बी टेस्टिंग और कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। अभी मैं डायरेक्टली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नाउ व्हेन आई क्लिक ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, यू सी दैट यहाँ पे मुझे एक एस्टिमेट आता है, बट दिस एस्टिमेट डज नॉट मीन एनीथिंग। और यहाँ पे अगर आप देखोगे रीच आता है, यानी आपका ऐड कितने लोगों तक पहुंचेगा डेली बेसिस पे। और यहाँ पे कन्वर्सेशन है, यानी यहाँ पे मुझे लीड्स नहीं आ रही है, कन्वर्सेशन आ रहे हैं। तो इस चीज को भी मैं चेंज कर सकता हूँ और डिफरेंस क्या है वो भी मैं बता दूंगा अभी। नाउ व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट इज कि बाकी एलिमेंट में पहले सेट करूं। जैसे डेस्टिनेशन क्या है कि लोग मुझे मैसेज करेंगे, सो दैट इज परफेक्टली सेट। यहाँ पे एड टाइप क्या है, क्लिक टू मैसेज है, यानी लोगों के पास एक कॉल टू एक्शन अब आएगा मैसेज नाउ, तो मेरे पास लोगों की डायरेक्टली मैसेज आ जाएंगी। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट हियर, जैसे मैसेजिंग एप्स कहां कहां पे लोग आपको मैसेज कर सकते हैं। नाउ इफ यू हैव फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम कनेक्टेड है, तो आप दोनों को चेक करिए, दोनों प्लेटफॉर्म्स को, सो दैट पीपल कैन मैसेज यू बोथ ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज फेसबुक मैसेजिंग, यानी दोनों जगह पे लोगों को आपके ऐड दिखेंगे। उसके बाद बजट एंड स्केड्यूल है। ये जो बजट एंड स्केड्यूल है, ये जैसे मैंने अभी कहा था, ये वैरी करेगा कि मुझे कितना लीड चाहिए डेली बेसिस पे। नाउ फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ पे लाइफ टाइम बजट सेट किया, यानी मैं अपना एक ड्यूरेशन सेट करूंगा ऐड का। और अभी बिकॉज आई एम अ स्मार्ट एंटरप्रेन्योर, व्हाट विल आई डू इज दैट मुझे जून में लीड चाहिए पहले वीक से ही, तो मैं अभी मेरे पास फ्री टाइम है। सो रादर देन आई स्पेंड दिस फ्री टाइम ऑन समथिंग स्टूपिड, इधर उधर की चीज देखूं, right? Why not I spend it on something productive that I plan my promotions, I plan my business accordingly. तो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे पता है कि जून का जो पहला वीक है, 1 2 3, आई बी बिजी, कैटलॉग लॉन्च करना है, अनबॉक्सिंग करना है, मे बी लाइव जाना है। तो आपके पास टाइम तो होगा ही नहीं कि आप कंटेंट क्रिएट करो, आप ऐड चला लो, राइट? तो आप क्या करोगे, मैं पहले से ही अपना ऐड एक सेट कर दूंगा। और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने डेट सेट करी। ओके, तो आई एम टेलिंग फेसबुक दैट यू स्टार्ट माई एड फ्रॉम द 1st of June itself। सुबह 7 बजे से मैं अपना ऐड शुरू कर रहा हूं। ओके, और मेरा ऐड चलेगा 4 दिन का, यानी सॉरी या 4 जून तक।
और शाम को फॉर इंस्टेंस 10 बजे तक मुझे अपना ऐड दिखाना है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ लाइक बजट, यहाँ पे देखो कन्वर्शंस का नंबर आता है, लेकिन अभी दिस नंबर डज नॉट मीन एनीथिंग। क्यों? क्योंकि अभी मैंने अपनी ऑडियंस में कोई भी फिल्टर नहीं लाया, अभी मैंने फेसबुक को अपनी ऑडियंस नहीं बताई। तो यहाँ पे फॉर इंस्टेंस लाइक मेरा एड रन होगा 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून, और मैं कहूंगा पर डे मेरा जो बजट है, आई एम विलिंग टू स्पेंड क्लोज टू 1000 रुपीज ऑन डेली बेसिस, यानी इस एड के लिए मेरा जो एक्चुअल बजट है वो है 4000 रुपए। और 4000 में आपको फेसबुक अब एस्टिमेट देने लगा है, बट अभी जैसे मैंने कहा कि एस्टिमेट कम भी होगा ज्यादा भी होगा व्हेन फाइनली आई विल सेट माय ऑडियंस। लेकिन अभी मैंने डिफाइन किया कि 4000 मेरा बजट है टोटल, और इस पे आपको फेसबुक को कितना देना पड़ेगा? 18% जीएसटी, जो टैक्स आपका लगता है। देन आई विल कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज टारगेट ऑडियंस। जैसे फॉर इंस्टेंस लाइक दे वांट से कि हमें ये एड चलाना है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो मैंने यहां से यूपी सिलेक्ट किया। नाउ अगर आप और ज्यादा पर्टिकुलर जाना चाहते हो कि मुझे जैसे फॉर इंस्टेंस लाइक लखनऊ में चलाना है, मुझे किसी पर्टिकुलर और लोकेलिटी में चलाना है, वैसा भी आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ यहाँ पे मैंने पूरा स्टेट लिया, उसके बाद एज, क्योंकि मैं यंग मदर्स को रीच आउट कर रहा हूं, यहाँ पे जो आइडियल एज है आई विल सेट कि फॉर इंस्टेंस मैं 28 से 35 ले रहा हूं। ओके, तो अगर आप देखो कि जो ही मैं अपनी एड में ऑडियंस ऐड कर रहा हूं, जो ही मैं अपनी एड में लाइक फिल्टर कर रहा हूं अपनी ऑडियंस को, ये जो नंबर है ये कम होता जा रहा है, राइट। बट अभी भी मैंने सिर्फ 2 फिल्टर डाले हैं, एज का और लोकेशन का। उसके बाद में थर्ड फिल्टर डालूंगा जो कि जेंडर का है, कि जैसे फॉर इंस्टेंस आई वांट टू रीच आउट यंग मदर, सो ऑफ कोर्स लाइक मैंने वुमेन चूज किया। नाउ विद एवरी स्टेप आई एम एडिंग, यहाँ पे आप देखो पोटेंशियल कितना रीच जो है वो कितनी कम हो रही है। व्हाई? बिकॉज आई एम बीइंग स्पेसिफिक नाउ। अभी भी लेकिन मेरी ऑडियंस देखोगे बहुत ब्रॉड है, स्पेसिफिक देखो इतना है, अभी ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है, मतलब अभी भी समझो कि 22 लाख लोग हैं। ओके, सो व्हाट आई डू इज आई नाउ, ये जो है ये बेसिक टारगेटिंग है, जो आपका एज हो गया, लोकेशन हो गया, जेंडर हो गया, दिस इज ऑल बेसिक टारगेटिंग। नाउ आई विल गो टू द एडवांस टारगेटिंग, जो कि यहां से हो जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरा जो टारगेट है वो है पेरेंट्स। ओके, तो यहाँ पे मैं पेरेंट्स सर्च करूंगा, यहाँ पे देखो ऑल पेरेंट्स बता रहा है, यंग पेरेंट्स भी आ जाएंगे, तो मैं कहूंगा कि न्यू पेरेंट्स। मैं मे बी शायद अप टू 1 से 2 साल वाले भी ले लूं, जैसे ये भी लिया 1 to 2। ओके, अभी फेसबुक इज वेरी स्पेसिफिक टेलिंग मी कि आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो रहे हो, तो जो आपकी ऑडियंस है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि लाइक आपको उस पर्टिकुलर सेट में, आपको उस पर्टिकुलर कैटेगरी में ऑडियंस मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है। एनीवे व्हाट वी विल ट्राई टू डू हियर इज, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको कहता है कि आप अपने ऐड को किस चीज के लिए ऑप्टिमाइज करते हो। That is weird. Just a second. यहाँ पे I'll click this clause that you reach out to people who go beyond my target audience, और यहाँ से मैं exclusion डालूंगा, यानी किन किन लोगों तक आपका ऐड नहीं पहुंचना चाहिए। और यहाँ पे मैं ऑरिफ्लेम सर्च करूंगा, और जो भी ऑरिफ्लेम रिलेटेड चीजें आती हैं, चाहे ऑरिफ्लेम एम्प्लॉयर हो गया, ऑरिफ्लेम इंटरेस्ट हो गया, तो जो लोग ऑलरेडी ऑरिफ्लेम के साथ एसोसिएटेड हैं, या जिन्होंने अपने करियर या जॉब में ऑरिफ्लेम मेंशन किया है, उन लोगों तक आइडियली आपका जो कंटेंट है वो नहीं पहुंचेगा। बट दैट इज नॉट वेरी श्योर शॉट, आपका जो कंटेंट है फिर भी पहुंच सकता है, क्योंकि बहुत बार लोग अपडेट नहीं करते हैं अपने सोशल मीडिया पे। ओके, नाउ हियर देयर इज द प्रॉब्लम,
यूजुअली यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखते हैं. दिस इज नॉट अलाउिंग मी टू हैव द ऑप्शन फॉर मैसेजेस, राइट? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिखेगा आपको, और यहाँ पे आप दो चीजों के लिए इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. एक आपकी कन्वर्सेशन के लिए, और दूसरा डायरेक्टली आपकी लीड्स के लिए. एक सेकेंड, लेट मी जस्ट गो टू द फाइनल एड सेट. शायद यहाँ पे कुछ चेंज करना होगा. ओके, यहाँ पे कन्वर्सेशन है, यहाँ पे जनरेट लीड्स करते हैं. ओके, नाउ आई गो बैक. यहाँ से आप देखते हैं, हाँ नाउ क्योंकि वहां पे जो फॉर्म था, फॉर्म में ऑलरेडी कन्वर्सेशन सेट था, तो आप देख रहे, तो मुझे यहाँ पे कन्वर्शन सेट करने नहीं दे रहा था, लेकिन अब मैंने वहां पे उसको लीड्स कर दिया. तो आई थिंक नाउ विल हैव एन ऑप्शन होपफुली. या आप देखो, अब यहाँ पे लीड्स हो गया, राइट? अभी कन्वर्सेशन था. नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर इज दैट कन्वर्सेशन बहुत कॉस्टली पड़ती है, बहुत ज्यादा. तो जब आपने देखा कन्वर्सेशन का नंबर था बहुत कम था, लेकिन अब लीड्स आ गया, तो आई एम गेटिंग अ रियली गुड सेट ऑफ लाइक नो नंबर. जब मैंने यहाँ पे लीड्स के लिए ऑप्टिमाइज किया, तो मेरा लाइफ टाइम बजट जो है इस एड के लिए वो 4000 है. मेरा एड रन होगा फ्रॉम जून 1 टू जून 4, यानी 4 दिन का मैं एड रन कर रहा हूं. और अभी मैंने फेसबुक को जो बेसिक टारगेटिंग दी है, वो मैंने कहा कि आप उत्तर प्रदेश में ये ऐड दिखा दो. किन लोगों को दिखाना है? जो 20 से 35 की एज ग्रुप के बीच में है, जेंडर वुमेन होना चाहिए. और डिटेल टारगेटिंग में जो कि न्यू पेरेंट्स हैं, यंग मदर्स जिनका बेबी अप टू 12 मंथ यानी 1 साल का है, एंड ऑल्सो लाइक पेरेंट्स, मदर्स जिनका घर में बच्चा कितने टाइम अप टू 2 साल तक का है. तो जब मैंने फेसबुक को ये स्पेसिफिकेशन दे दी, अदर देन दैट मैंने फेसबुक को ऑल्सो कहा कि आप एक्सक्लूड करो मेरा एड, प्लीज ऐसे लोगों को मत दिखाना जो ऑरिफ्लेम से एसोसिएटेड है किसी तरीके से. तो जिसने भी ऑरिफ्लेम में मेंशन किया होगा उनको मेरा ऐड नहीं दिखेगा. लेकिन अगर मैं ऑरिफ्लेम के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैंने अपने सोशल मीडिया पे ऑरिफ्लेम नहीं लिखा है, तो मुझे आपका ऐड दिख सकता है, उसमें हम कोई कंट्रोल नहीं लगा सकते. लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पे मैंने फेसबुक को कहा, हाँ इन केस मेरे ऐड का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, तो आप प्लीज लाइक दूसरे लोगों तक भी पहुंच सकते हो. यू हैव द अथॉरिटी, यू हैव द फ्री विल टू डू दैट. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज पैरामीटर्स, अभी मैं ऑडियंस में और ज्यादा फिल्ट्रेशन ला सकता हूं. जैसे अगर मैं कहूंगा कि मुझे सिर्फ वर्किंग मदर ही चाहिए जो पहले जॉब करती हूँ, देन व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पे वर्क का भी टारगेट ऐड कर दूंगा, जो इन कंपनीज में काम करती हैं या जिन्होंने मेंशन किया होगा या इस इंडस्ट्री में. बट दिस वाज जस्ट गिव एन आइडिया कि लाइक मैं अपनी ऑडियंस को फिल्टर कैसे कर सकता हूँ. नाउ इफ यू लुक एट इट, आई एम गेटिंग अ रियली गुड ऑप्टिमाइज्ड लीड सेट. तो मुझे डेली बेसिस की मिनिमम 37 लीड्स आ जाएंगी और मैक्सिमम 108 आ जाएंगी. और ये टोटली डिपेंड करेगा किस चीज पे, कि मेरा एड कैसा परफॉर्म करेगा, मेरा कंटेंट कैसा होगा, कॉम्पिटिटिव एड्स कितने साथ में चलेंगे. अगर बहुत सारे लोग एड चलाते हैं तो मेरा लीड काउंट कम आ जाएगा. लेकिन अगर उस टारगेट ऑडियंस में सिर्फ अकेला मेरा एड चल रहा है, यानी बहुत कम एड चल रहे हैं, इट्स जस्ट दैट लाइक जहां पे 10 लोग कॉम्पीट करेंगे वहां पे ज्यादा कॉम्पिटिशन टफ होगा. जहां पे कम लोग कॉम्पीट करेंगे, कम लोग एड चलाएंगे, वहां पे इजीली लीड मिल जाएगी, राइट? सो दैट इज लाइक हाउ इट वर्क्स. तो यहाँ पे आपके पास आती है दिन की 108 लीड भी, तो ये वैरी करेगा ना. मैं एक एवरेज लेता हूं कि चलो दिन की मेरे पास 60 लीड आ जाएंगी, राइट? मिनिमम. फॉर इंस्टेंस 4 दिन में आपके पास कितनी लीड्स आ गई? 240 लीड्स. नाउ इमेजिन लाइक ठीक है, ये वाला जो एड है ये आपको कितनी लीड्स देता है? 250 लीड देगा ये 4 दिन में आपके पास. ये मिनिमम नंबर मैं कह रहा हूं. if your ad is optimized you might get 100 leads per day as well. ये totally depend करता है फेसबुक कितना करेगा. that is why एक मिनिमम नंबर है और एक मैक्सिमम नंबर है. तो इन्हीं दोनों नंबर में आपका मिनिमम तो 37 आएंगी, लेकिन 100 भी आ सकती है और 108 भी आ सकती है. लेकिन हम एक मीडियन लेते हैं और हम कहते हैं ठीक है मेरे पास 4 दिन में 250 लीड आ जाएंगी. आपने कितना इन्वेस्ट किया था? 4000, और उस पे समझो कि आपका
1200-1400 जितना भी आपका इस पे ये लगेगा जीएसटी, तो समझो कि आपने यहाँ पे 5000 या 5200 रुपए खर्च किया था। ओके, और 5200 में आपको कितनी लीड्स आ गई, समझो कि आपको 250 लीड आती है, राइट। तो इट मींस दैट कि आपका जो लीड कॉस्ट है वो आइडियली वहीं 20-21 रुपए के आसपास पड़ जाता है, विच इज वेरी गुड कॉस्ट, और आपकी ऑडियंस फिल्टर्ड है, आप बहुत स्पेसिफिक रह रहे हो कि मुझे इस ऑडियंस तक अपना ऐड पहुंचाना है। ओके, नाउ प्लेसमेंट ऑटोमेटिक मेरा ऑप्टिमाइज होगा लीड्स के लिए, और उसके बाद आई विल क्लिक ऑन कंटिन्यू। नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज दैट यहाँ पे अब मुझे लास्ट चीज देखना है कि मेरा फॉर्मेट क्या है, मैं सिंगल इमेज यूज कर रहा हूँ, मैं कैरूजल चला रहा हूँ, मैं वीडियो चला रहा हूँ, अकॉर्डिंगली यहाँ पे अगर मेरा कैरूजल है तो कैरूजल में चूज करूंगा, लेकिन अभी मेरा सिंगल इमेज फॉर्मेट है तो आई जस्ट स्टिक टू दैट, और यहाँ पे मैं ऐड मीडिया में जाऊंगा, और यहाँ देखो यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो है, तो क्रिएटर स्टूडियो में आप देखो आप वीडियो कंटेंट यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, बने बनाए टेम्पलेट है जिनमें अच्छी अच्छी एनिमेशन होती है, ये भी बहुत अच्छा वर्क करती है। तो यू एक्चुअली लाइक कैन गो टू द क्रिएटर वीडियो एंड क्रिएट अ वीडियो राइट फेयर, अगर आपने पहले से ही बना रखा है इट्स ऑल्सो रियली रियली गुड आइडिया कि पहले से ही एक अच्छा सा टेम्पलेट वीडियो या इमेज बना के रखो एंड अपडेट इट। नाउ मैंने इसको डाउनलोड किया था, आई विल गो टू माई डाउनलोड्स, और यहां से मैं सिलेक्ट कर लूंगा। ओके, नाउ आई जस्ट पिक द टेम्पलेट जो मैंने इस ऐड के लिए बनाया था, और यहाँ पे मैंने उस टेम्पलेट को फिक्स किया। नाउ कम्स अगेन अ रियली रियली वाइटल पार्ट, दैट इज कि आपका प्राइमरी टेक्स्ट क्या है, यानी आपकी कैप्शन क्या है, आपकी हेडलाइन क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है तो ये जरूरी नहीं है, और आपका कॉल टू एक्शन क्या है। तो कॉल टू एक्शन तो सेंड मैसेज ही रहेगा जो कि अच्छा कॉल टू एक्शन है, और यहाँ पे आपको आइडियली क्या दिखेगा, आपको प्रीव्यू दिखेगा कि आपका ऐड कैसे दिखेगा लोगों को। अभी जैसे इसको देखता हूँ मोबाइल डिवाइस पे या डेस्कटॉप पे, तो अभी टेक्निकली मेरा ऐड जो है वो टाइमलाइन में समथिंग लाइक दिस इट विल अपीयर, राइट। लेकिन अभी इसमें क्या चीजें हैं, मैं कॉल टू एक्शन रखूंगा सेंड मैसेज ही, इसको मैं चेंज नहीं करूंगा। यहाँ पे चैट विद अस जो हेडलाइन है इसको मैं चेंज करूंगा, और अभी ऊपर कुछ कैप्शन नहीं है तो ऊपर मैं कैप्शन दे दूंगा। सो राइट अवे आई विल डू दीज थिंग्स, जैसे हेडलाइन है चैट विद अस, यहाँ पे मैं लिखूंगा जैसे ओके, हेडलाइन मैंने रखी मैसेज मी नाउ, कॉल टेक्स्ट एंड सेंड मैसेज ही है, और यहाँ पे मैं प्राइमरी टेक्स्ट ऐड करूंगा। नाउ प्राइमरी टेक्स्ट क्या होगा, प्राइमरी टेक्स्ट भी तीनों चीजें ना बहुत रिलेवेंट होनी चाहिए, जैसे आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, आप उसके लिए मीडिया क्या चूज करते हो, देन फाइनली आप कैप्शन क्या यूज करते हो। जैसे अगर मैं कैप्शन में लिखूंगा मेक मनी, खत्म हो गया मेरा सारे ऐड का जो एक मैंने बिल्डअप किया था, बिकॉज दैट इज नॉट द राइट वे, दैट इज restricted content, that is prohibited content, इससे मेरे ऐड में प्रॉब्लम आ जाएगी। So rather what I do is I say for instance ओके, नाउ कैप्शन भी मैंने रेलिवेंट लिखी। यूजुअली क्या होता है, आई डोंट नो व्हाई इज इट हैपनिंग हियर, आजकल क्या होता है जब आप एड अकाउंट में होते हो तो जैसे मैंने एक हेडलाइन दे दी, मुझे फेसबुक मल्टीपल ऑप्शन देता है, यानी यहाँ पे जैसे अभी मे बी विवेक एंड मनीषा आपका जो एड अकाउंट है पुराना है, आप इसको थोड़ा अपग्रेड कर दो, जस्ट लुक इफ देयर इज सम अपडेट अवेलेबल, क्योंकि यूजुअली अभी क्या होता है फेसबुक आपको यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट में 5 अलग ऑप्शन देता है हेडलाइन के, यानी जैसे मैंने ये लिखा एक, बट ये अच्छी कैप्शन नहीं हो सकती है, क्या पता मैं इससे बेटर कैप्शन भी लिख सकता हूँ,
तो आप क्या, आपके पास जब आप ट्राई करोगे तो मे बी आप में से बहुत सारे लोगों को दिखे। आप यहाँ पे एक और कैप्शन ऐड कर सकते हैं। तो आप 5, मैं तो रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट 3 कैप्शन यूज किया करो। वाई? क्योंकि आपको कभी नहीं पता कि जो आपने दूसरा सोच के रखा था, जो आपको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वही ऑप्टिमाइज हो रहा है, तो फेसबुक क्या करेगा फिर? अगर फेसबुक को लगा कि अरे ये कैप्शन देख के तो बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उसी कैप्शन को ऑप्टिमाइज करेगा, तो वही कैप्शन आपका लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। एनीवे, वी डू नॉट हैव दैट ऑप्शन हियर येट, तो इट्स ओके। अब यहाँ पे एक्सपैंड में हम देखेंगे कि हमारा ऐड कैसा दिख रहा है विद ऑल दी थिंग्स वी जस्ट डिड। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरा कैप्शन भी सेट हो गया, मेरा मैसेजिंग जो है इमेज पे वो भी एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे मेरा जो हेडलाइन था जहां पे मैंने मैसेज भी नाउ लिखा था, और यहाँ पे कॉल टू एक्शन भी है सेंड मैसेज का। इट मींस दैट लाइक every element, everything in my ad is set perfectly fine. Now मुझे लास्ट चीज करनी है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरा बहुत टाइम बचा सकती है और मेरे लिए कन्वर्शन को बेटर कर सकती है। तो वो क्या है? अपना एक लीड, एक मैसेज कन्वर्सेशन सेट करना, यहाँ पे एक फॉर्म सेट, चैट सेटअप कर लेना। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर इज दैट यहाँ पे सबसे पहले एक इंट्रो आ जाता है। ओके, नाउ यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें रिकमेंड करूंगा, जैसे ये आपका नाम ले लेगा। यहाँ पे अभी डायरेक्टली वांट टू गेट स्टार्टेड आ रहा है, आई डू नॉट नीड दैट। एनीवे, यहाँ पे जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे मैं कहूंगा जैसे थैंक्स। नाउ व्हाट विल हैपन हियर इज दैट जब भी आपको कोई मैसेज करेगा, नाउ इमेजिन लाइक आई सॉ विवेक्स एड, और मैंने मैसेज नाउ पे क्लिक किया और मैंने लिखा हाय आई एम इंटरेस्टेड, और लाइक मैंने हाई लिखा, मैं कुछ भी लिखूं, लेकिन वहां से मुझे ऑटो रेस्पॉन्स आएगा। यानी जो एक लीड टू प्रोस्पेक्ट कन्वर्शन टाइम है वो बिल्कुल कुछ सेकंड्स का ही है। आप मुझे मैसेज करते हो, आपको इमीडिएटली रेस्पॉन्स मिलता है। यहां से ना ही मुझे आपको कॉल करना है, ना ही आपका फ्री टाइम जानना है, नहीं, आपको ऑटोमेटिकली रेस्पॉन्स आ रहा है। और अगर आप उस मोमेंट में फ्री हो, तभी तो आपने इंटरेस्ट दिखाया, तो आप ऑटोमेटिकली सारी चीजें जान सकते हो मेरे बिजनेस में। और अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप डायरेक्टली मेरी अपॉर्चुनिटी मीटिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। राइट, लेट्स कीप दैट फॉर्मेट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर इज दैट जो ही मैंने विवेक को यहाँ पे टेक्स्ट किया, वहां से मुझे मैसेज आया, हे हाय सफीर, थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट। देन ये अपने बारे में कुछ लिखेंगे, जैसे जैसे फॉर इंस्टेंस लाइक दिस इज फॉर यंग मदर्स। तो ये वाला जो टेम्पलेट है, ये मैं स्पेसिफिकली यंग मदर्स के लिए यूज करूंगा। मे बी मैं इनके लिए लाइक अलग से एक टेम्पलेट बना लूं, सो दैट इट इज मोर पर्सनल टू देम एंड दे लाइक द मैसेजिंग जो मैं इनको यहाँ पे दूंगा। ओके, नाउ फॉर इंस्टेंस लाइक यहाँ पे मैं नाम भी रख सकता हूँ, जैसे सैल्यूटेशन का ऑप्शन आता है, इसको मैं हटा दूं यहाँ से, जैसे हाय। तो जो भी मुझे मैसेज भेजेगा, हाय थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट,
This might not be the best response, but I'm just giving you an idea कि like ये automatically हो जाएगा. Now what is happening here is the moment somebody is like messaging Manisha, यहाँ से एक मैसेज आ जाता है एंड वी नो कि हमने किनको टारगेट किया है. वी हैव टारगेटेड यंग मदर्स. नाउ ऑटोमेटिकली लाइक मुझे किसी भी मदर का वहां से एक टेक्स्ट आ जाता है, यहाँ से ऑटोमेटिकली रेस्पॉन्स चला गया. द मोमेंट समबडी सेज हाई, आई एम इंटरेस्टेड, कैन आई नो अबाउट इट, यहाँ से एक रेस्पॉन्स आ गया. Hey, hi, thanks for your interest in one of the preferred online business for young mothers. Over years, we have transformed thousands of young mothers into successful mompreneurs. Kindly check the video to know about my business and career achievements. यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वीडियो भी ऐड किया. ये जैसे मैंने यहाँ पे बड़ा सा कैप्शन लिखा, लेकिन आप ना बिल्कुल एक छोटा सा भी कैप्शन लिख सकते हैं. जैसे hey, thanks for checking out my business opportunity. Please have a look at this video and then proceed with the form below. ऐसा भी लिख सकते हो आप. ये बस मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं. इट्स ऑल अप टू योर इमेजिनेशन कि आप कितना क्विक, कितना टू द पॉइंट कंटेंट लिख सकते हैं. ठीक है, वो भी काफी अच्छा है. इट्स जस्ट फॉर गिविंग यू आइडियाज दैट वी कैन just get more specific or we can have really quick and prompt actions here. और यहाँ पे आपने वीडियो ऐड किया. तो मैंने जो वीडियो बनाया था गोल्ड क्लब के लिए, अभी मैं उसी को अपडेट करूंगा जस्ट फॉर द रेफरेंस. ना इमेजिन आपने ना एक बहुत ही अच्छा वीडियो शॉट किया अपना, अप टू 40 सेकेंड्स का, अप टू 50 सेकेंड्स का, और उस वीडियो को आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, जहां पे आप खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं. यू टेल देम दैट यू आर एन एंटरप्रेन्योर विद ऑरिफ्लेम, और आपका जो बिजनेस है वो बहुत सूटेड है यंग मदर्स के लिए. एंड ओवर पीरियड आपके साथ बहुत सक्सेसफुल यंग मदर्स एंड वुमेन हैं जो अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर रही हैं. टू नो मोर अबाउट दिस बिजनेस, और आप इसको कैसे सेटअप कर सकते हो, और आपको हमारे एंड से क्या सपोर्ट मिलेगा, हमारे एंड से क्या क्या चीजें मिलेंगी. आप प्लीज नीचे जो डिटेल्स है उनको सेंड करो, and we'll be inviting you to our opportunity meeting. So what will happen is that जब आपको कोई मैसेज करेगा, यहाँ पे उनके पास आपका एक ऑटो टेक्स्ट आ गया, और यहाँ पे एक कॉल टू एक्शन है कि आप वीडियो देखो. तो उनको टाइमलाइन में क्या होगा, यहाँ पे हमारा वीडियो दिखना शुरू हो जाएगा. नाउ अगर किसी ने आपका वीडियो अच्छा है, आपके वीडियो में एक राइट मैसेज है, तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे I will actually have a quick caption. If you want to make a generic one, hi, thanks for your interest in my business opportunity. तो डायरेक्टली एक मैसेज आ गया, आप वीडियो देखो, और वीडियो में आपने बात करी अपने बारे में. आप एक ऑरिफ्लेम के साथ एंटरप्रेन्योर हो, लीडर हो, आप ये चाहते हो, आप ये कर सकते हो, और आपने कहा कि ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप नीचे दिए गए डिटेल से प्रोसीड कर लो. यहाँ पे मैं ये सारे एलिमेंट अभी हटा दूंगा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें करने को. Now what happens here is that I can ask for the full-fledged details or I can let them be. ये totally आप पे डिपेंड करेगा कि आपको उनका नाम, उनका ईमेल आईडी, उनका मोबाइल नंबर चाहिए, या फिर आप डायरेक्टली उनको लिंक दे दोगे तो जो वहां पे क्लिक करेगा. तो आई विल एक्चुअली रिकमेंड कि आप दोनों तरीके के फॉर्म को सेट कर सकते हो. बट हियर लेट्स फाइंड द वे जहां पे हम उनसे ये डिटेल मांगते हैं. जैसे मुझे आप अपना फुल नेम दे दो, तो यहाँ पे मैं कहूंगा फुल नेम क्या है आपका, देन यहाँ पे आपका सिटी क्या है,
यहाँ पे आपका करंट ऑक्यूपेशन क्या है, अभी आप क्या कर रहे हो, तो बिकॉज दे आर यंग मदर्स बट मे बी लाइक दे विल से कि वो यहाँ पे जॉब करते हैं या फिर यहाँ के साथ वो एम्प्लॉयड है, तो इट्स लाइक ऑलवेज अ गुड आइडिया। एंड देन यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर, अभी मैंने कस्टम ही डाला बट आप यहाँ से एलिमेंट भी पिक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट जस्ट अ सेकंड, so my this one want to get started, इसकी जगह में like I can have something for instance like और इसको फिर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन भी आ जाएगा कंप्लीशन का। ओके, जैसे फॉर इंस्टेंस लाइक रादर देन थैंक यू फॉर आंसरिंग आवर क्वेश्चंस आई कैन हैव और यहाँ पे आप क्या दे दोगे, आपके व्हाट्सएप का लिंक। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर इज दैट कि जब भी आपको कोई एक बार लेट मी जस्ट प्रीव्यू वेट, लेट्स सी लाइक let me just try to see like ओके। नाउ आपके पास यहाँ पे ऐसे ऑप्शन आ जाएगा कि जैसे लाइक इन्होंने आपके सारे सवालों का जवाब दिया और आपके लीड बन गए, तो यहाँ पे थैंक यू भी आएगा और यहाँ पे आप देखो यहाँ पे व्हाट्सएप का ये आ जाएगा और नीचे आपने अपना साइन ऑफ करा है थैंक यू विवेक एंड मनीषा फॉर इंस्टेंस। तो आपका जो एड है पूरा यहाँ से आप टेम्पलेट आपका सेट हो गया, राइट। So in preview we saw that like what happens here is that कि जब भी हमारे पास कोई लीड आती है तो उनको यहाँ पे डायरेक्टली हम एक कॉल टू एक्शन मैसेज सेट कर सकते हैं रेस्पॉन्स में विच प्रॉम्प्ट देम टू चेक आउट अवर वीडियो। हमारे वीडियो में उनको एक इंट्रोडक्शन मिल जाता है हमारे बिजनेस के बारे में, दे गेट टू नो कि हम कौन है, हम ऑरिफ्लेम के साथ एसोसिएटेड है। एंड इफ दे आर लाइक इंस्पायर्ड, इफ दे आर रियली लाइक अट्रैक्टेड टू आवर कंटेंट आउट देयर, वो फिर प्रोसीड करेंगे और हमारे पास जो भी मैंने क्वेश्चन कस्टम सेट करे जहाँ पे मेरे पास उनका नाम आता है, सिटी आता है, मोबाइल नंबर आता है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से वो फिल करेंगे। जब मेरे पास वो डिटेल आ जाएंगे उन तक मेरा एक थैंक यू मैसेज पहुंचेगा और वो थैंक यू मैसेज के बाद
व्हाट विल हैपन इज कि वो उनको जो थैंक यू का मैसेज आएगा उसमें व्हाट्सएप का भी मैं एक लिंक ड्रॉप कर रहा हूँ, एंड इन केस लाइक दे आर इंटरेस्टेड, इन केस वो मेरे साथ उसी टाइम व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना चाहते हैं, वो मुझे व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि मैंने एक एड प्लान किया, मैंने उसको एक राइट टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा दिया, और उनको एक राइट कम्युनिकेशन सेट भी करी है, सो दैट दे कम विद अ प्रॉपर माइंडसेट। अच्छा, आप मुझे अपॉर्चुनिटी मीटिंग में बैठना है तो ठीक है, आप हम इनके साथ फॉलो अप कर रहे हैं, और हमारा जो नेक्स्ट बड़ा एंडीवर होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि उनको हम अपनी अपॉर्चुनिटी मीटिंग में लेके आ सके। यहाँ पे मैं बस एक चीज रिकमेंड करूंगा, जैसे क्वेश्चन जब आप ऐड करोगे तो रादर देन चूजिंग द कस्टम क्वेश्चन, मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ से ले लो चीजें, जैसे फोन नंबर यहाँ पे भी ऑप्शन आता है तो यहाँ पे फोन नंबर लिखो। सिमिलरली जॉब टाइटल यहाँ पे ऑप्शन आता है, तो लाइक लेट मी जस्ट डू इट, मैंने यहाँ पे फोन नंबर किया सर्च, फिर ऐड क्वेश्चन में जॉब टाइटल यहाँ पे लिया, फिर ऐड क्वेश्चन में मैंने फोन नंबर जॉब टाइटल सिटी 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 यूजर नेम फुल नेम यहाँ से लिया, और यहाँ से मैंने सिटी भी ले ली। ओके, तो इसका जो एक बेनिफिट मिलता है वो, एक सेकंड, यहाँ से जो मैंने कस्टम सेट किया था, लेट मी डिलीट दैट वन, बिकॉज इट डेफिनेटली हैज अ बेनिफिट जो कि यहाँ पे कस्टम में आपको नहीं मिलेगा। इसको आप ड्रैग भी कर सकते हो, अगर जैसे आपको ये क्वेश्चन ऊपर चाहिए तो ये क्वेश्चन सबसे पहले दिखेगा लोगों को कि फुल नेम क्या है आपका, तो जैसे ये सीक्वेंस है ये आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे ओके सॉरी। ओके, जैसे यहाँ पे व्हाट इज योर फुल नेम, इसको बस मैं नीचे कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो व्हाट विल हैपन इज दैट जब मैंने ऐसे चैट सेट किया, ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये फेसबुक से ही मेरा नाम ले लेगा, तो मुझे अभी जैसे टाइप करना पड़ा, इन दैट केस मुझे टाइप नहीं करना पड़ा। अगर मैंने फेसबुक में लिखा है कि मैं एक टीचर हूं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मुझे कहेगा टीचर आ जाएगा, खुद लिखा हुआ आ जाएगा। सिमिलरली बहुत सारे हम क्या करते हैं, हमारा तो फेसबुक पे ऑटोमेटिकली मोबाइल नंबर भी होता है, राइट? तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि मुझे अपना मोबाइल नंबर लिखना भी नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली फेसबुक ऑटो सजेस्ट में वो मोबाइल नंबर भी दिखा देगा। तो जब मैंने एक ऐसा सेटअप किया, तो लेट्स सी ये कितना डिफरेंट हो जाएगा उससे। सॉरी, आई हैड टू वेट फॉर द वीडियो। तो आप देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये मुझे कहेगा कि आप चूज करो। तो इट्स एक्चुअली जो भी मैंने फेसबुक में डिटेल दिया है वो ऑटोमेटिकली खुद ही आ रही है यहाँ पे, तो मुझे कुछ भी नहीं लिखना है, मुझे बस उस चीज को सिलेक्ट करना है, और ऑटोमेटिकली इससे क्या होता है, जो आपकी लीड होती है तो कन्वर्शन टाइम क्विक रहता है। क्यों? क्योंकि बना बनाया सारी चीजें आती हैं, एंड इट एड्स अप टू द ऑथेंटिसिटी, और इस तरीके से जो आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो सेट हो जाएगा। बट आई थिंक देयर इज वन थिंग विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ, वो है अब ये वाला मैसेजिंग, एंड देन आई विल बी डन विद द डेमो, एंड उसके बाद अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आई विल एक्चुअली टेक अप द क्वेश्चन एज वेल।
यहाँ पे आप ये देना, वरना उनको पता नहीं चलेगा। ओके लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पे दिस इज द थिंग विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। आप जैसे लाइक आपने वीडियो में ही उनको डायरेक्टली कहा कि आप हमारी अपॉर्चुनिटी मीटिंग के लिए फिर हमें व्हाट्सअप कर लो। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यू डू नॉट वांट कि यहाँ पे फिर आपको लोग मैसेज दे दें, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे डायरेक्टली कंप्लीशन लगा सकते हो। यानी लाइक आपने वीडियो देखा और आपने यहाँ पे यस श्योर का लाइक कंप्लीशन मैसेज रख दिया। यानी किसी ने आपका वीडियो दिखा और उसको आपने यहाँ पे कहा कि ठीक है लाइक आप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यानी जिसने भी आपका वीडियो देखा और यहाँ पे जो आपने उनको मैसेज मांगी, फॉर इंस्टेंस लाइक मैं यहाँ पे वो भी बता देता हूँ आपको। जैसे इस टेक्स्ट को मैं चेंज करूँ, जैसे मैंने आपका वीडियो देखा, आई रियली लाइक योर वीडियो, उसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा सैंपल ले रहा हूं तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज दैट कि अगर मुझे कोई यहाँ पे मेरा वीडियो देखेगा, उसको ये टेक्स्ट दिखेगा, प्लीज रीच आउट टू अस, और यहाँ पे आप देखो जो मैंने ऑप्शन डाला है वो यस श्योर लिखा है, राइट। तो जो भी फिर यस श्योर पे क्लिक करेगा, ऑटोमेटिकली उसको क्या दिखेगा, फिर आपका कंप्लीशन मैसेज, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंप्लीशन सिलेक्ट किया, तो उसको आपका ये वाला मैसेज दिखेगा जो आपने लास्ट में सेट किया। यानी इन दैट केस दैट पर्सन विल डायरेक्टली लाइक विल हैव टू, ये वाला मैसेज आ जाएगा कि थैंक यू फॉर योर टाइम, वी आर लाइक हैविंग फ्री स्लॉट्स, रजिस्टर फॉर अवर बिजनेस अपॉर्चुनिटी नाउ, व्हाट्सअप। और यहाँ पे आपने व्हाट्सअप का लिंक दे दिया और वो पर्सन इंटरेस्टेड है, वो डायरेक्टली आपको वहां पे व्हाट्सएप पे फिर कनेक्ट हो जाएंगे आपके साथ, और फिर आप वहां पे उनके चैट करके उनके से डिटेल ले सकते हैं। दे विल से कि हाय आई केम फ्रॉम फेसबुक, आपका ऐड देखा और यू आर हैविंग दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो दे ऑलरेडी नो कि आप कौन हो, आप क्या करते हो और उन्होंने आपको क्यों कांटेक्ट किया है। तो यू विल ऑलवेज हैव द सेट ऑफ लीड्स हु कम विद द डिफाइंड माइंडसेट, और उन तक बिजनेस कम्युनिकेट करना, उनको अपने सिस्टम में रिक्रूट करना ईजियर हो जाता है। तो मैं एक्चुअली आपको रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा टाइम आप स्पेंड करो एट टूल पे, और पर्टिकुलरली ये जो मैसेज सेट करने का ऑप्शन है, इसमें बहुत सारे वेरिएशन है, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। अगर आप देखोगे चैट तो इतना सिंपल नहीं है कि बस हमने एक थोड़ा सा फॉर्म सेट किया। इसमें आप बहुत सारी चीजें ऑटोमेटेड रख सकते हो, आप एक प्रोसेस सेट कर सकते हो अलग अलग तरीके का, एंड देन डेफिनेटली यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू नो कि क्या मुझे क्वेश्चन यहीं पे रखने चाहिए या डायरेक्टली मैं कंप्लीशन मैसेज डाल के उनको व्हाट्सएप पे लेके आ जाऊं, क्या मेरे लिए वर्क करता है। You will only get to know these things, you will only get to understand these things जब आप इन चीजों को ट्राई करोगे। तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि I'll be sharing the recorded version of this training with you guys। आप थोड़ा सा टाइम ले लो एंड आप थोड़ा सा टाइम ले लो, फिगर आउट दीज थिंग्स बाय योरसेल्फ, एंड आई एम श्योर कि लाइक विद टाइम आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड यू विल बी रनिंग रियली हाई इम्पैक्ट एड्स जो कन्वर्ट होंगे, और आप अपने लिए बहुत ज्यादा टाइम बचाओगे। आप बेटर प्लान कर सकते हो अपने पूरे लीड जनरेशन को, अपनी पूरी ब्रांडिंग एंड कम्युनिकेशन को, अगर आप इस चीज पे सही से काम करेंगे। ओके, so that's all from me। We will be short on time, that's why like I'll just cut down the training right away। एंड अभी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप प्लीज मुझे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, मैं मैसेज अभी चेक कर पा रहा हूँ यहाँ पे। हाय अर्चना, होप यू आर गुड, थैंक्स फॉर मैसेजिंग मी। Then there are a lot of anonymous messages I have got, which I have actually got like quite good number of username and passwords।
समबडी इज मेंशनिंग की लीड्स भी आती हैं, ज्वाइनिंग भी होती है, पर ऑर्डर नहीं लगाते। तो आई थिंक थोड़ा सा हम इसके बारे में आगे जाके डिस्कस करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट द लीडरशिप डेवलपमेंट। बट अभी अगर आपके क्वेश्चन है, प्लीज कीप देम इन स्पेसिफिक टू टुडेज टॉपिक की एड लीड्स के लिए या इस चीज को लेके आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। आ, बहुत सारे लोगों का जो एक जेन्युइन कंसर्न रहता है कि मेरे फेसबुक का एड अकाउंट तो ब्लॉक ही हो गया है, अब मैं क्या करूं। तो प्लीज बेयर विद मी फॉर सम टाइम। मैं आपको जैसे मैंने अभी कहा था, नेक्स्ट मंथ आई विल बी डूइंग लॉट ऑफ सोल्यूशन ओरिएंटेड ट्रेनिंग्स एज वेल। जैसे एड पॉलिसीज को हम एक बार फिर से रिवाइव करेंगे। आप फेसबुक सपोर्ट से कैसे बात कर सकते हो, आप अपने क्वेरीज को कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, अगर आपका एड अकाउंट डिसेबल है तो आप नया एड अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो, फेसबुक बिजनेस मैनेजर में आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। तो प्लीज वेट फॉर सम टाइम, विल बी डेफिनेटली डूइंग ट्रेनिंग्स अराउंड देम। यस, मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आई विल बी सेंडिंग यू द रिकॉर्डिंग इनटू दोज व्हाट्सएप ग्रुप्स। लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली सेइंग कि उनका फेसबुक पेज ब्लॉक है, उनका एड अकाउंट ब्लॉक है। सो आई बिलीव दैट ये काफी प्रिवेलेंट कंसर्न है अभी। So that's why please stay tuned for the upcoming trainings. We'll talk more about ads manager. We'll talk more about कि आप कैसे अपील कर सकते हैं, या फिर आप रिन्यू कैसे कर सकते हैं, या फिर कुछ केसेस में जहाँ पे सोल्यूशन ही नहीं होता है, उन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज आपको कोई ऑल्टरनेटिव पकड़ना पड़ेगा। तो प्लीज जिन जिनका पेज ब्लॉक हुआ है और उनका पेज वापस से वो रिएक्टिवेट नहीं हो रहा है, आई विल एक्चुअली रिकमेंड कि आप उस पेज को डिलीट ही कर दो और नया पेज सेटअप करो। देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू रेक्टिफाई द थिंग विच इज ब्लॉक्ड और जो ठीक नहीं हो रही है। आई विल रिकमेंड क्रिएट ऑल टुगेदर अ न्यू पेज विद द properly defined content and promotional strategy. Thank you, Amandeep. Thanks for your appreciation. Anonymous, kindly suggest few good apps for designing ads and video. बहुत बार मैंने रिकमेंड करा है, कैनवा बहुत अच्छा ऐप है, मैजिस्टो है, एडोबे ये है, लाइट रूम है, फिर फिल्मोरा गो है। अगर आप आईफोन यूजर हो, आई मूवीज है, इन शॉर्ट्स है। तो एप्स की कोई कमी नहीं है। somebody has asked कि अगर मुझे रेस्पॉन्डर का नाम रखना है, तो यहाँ पे देखो आप पर्सनलाइजेशन रखो, फर्स्ट नेम ऑफ द रिसिपिएंट। तो यहाँ पे सैंपल के लिए जैसे विवेक आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली इन दैट केस, क्योंकि यहाँ से मैंने सेट किया है, तो आप उनका फर्स्ट नेम ले सकते हो, उनका लास्ट नेम ले सकते हो, उनके फुल नेम से भी बुला सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि रेसिपिएंट का भी नाम आ जाए, जैसे मुझे पायल ने मैसेज किया, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली जाएगा हाई पायल। क्यों? क्योंकि यहाँ से मैंने पर्सनलाइजेशन को इंसर्ट किया है। तो जिनका भी ये क्वेश्चन था, आई होप आई आंसर दैट क्वेश्चन। नवरीत का, ओके नवरीत, आई होप यू नो दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। लीड अकाउंट, जो लीड अमाउंट है आपकी, पर लीड कॉस्ट कितने की पड़ सकती है, वो वैरी करता है। कभी कभी आपको लीड 40 का पड़ेगा, 100 रुपए का पड़ेगा, कभी कभी आपको 6 रुपए 8 रुपए की भी पड़ेगी। ये काफी फैक्टर्स पे डिपेंड होता है कि आपने पहले ही टारगेट में कितना फिल्ट्रेशन करा है। उसको छोड़ के बहुत सारे और एलिमेंट्स हैं, जैसे उस पर्टिकुलर टाइम पे कितना कंपटीशन है, कितने और लोग उस पर्टिकुलर टारगेट में ऐड चलाते हैं। उसी बेसिस पे आपका जो ऐड है, उसका ऑप्टिमाइजेशन और उसका जो पर लीड कॉस्ट है, वो वेरी करता है।
Thank you so much. What I will do is अभी I will just close the session. और जो लोगों ने कहा है कि उनको व्हाट्सएप में ऐड होना है, मैं एक बार फिर से यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. Thank you, Vivek and Manisha. I'll be logging out from your Facebook now. Okay. If you can see my screen, on my screen you will see my email ID. So people who want recorded version of this training, but अभी वो मेरे WhatsApp ग्रुप में नहीं है, तो आप प्लीज मुझे इस वाली ईमेल आईडी पे एक मेल ड्रॉप कर दो. मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा. And later tonight, I'll be posting the recorded version of today's training into the group. Okay. Okay, so I think my questions are done. Let me still check. Okay. So again यहाँ पे email ID लिखा हुआ है. In case you cannot view it, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ. I'll maximize it. Okay. Now I am sure that it will be visible loud and clear. तो यहाँ पे मैंने अपना email ID दिया है. So people who want to be added to the WhatsApp group and have access to the recorded versions, तो आप प्लीज मुझे यहाँ पे ईमेल कर दो, फिर मैं आपको अपने WhatsApp का लिंक ड्रॉप करता हूँ, and then you will be part of the group as well. Okay. Thank you so much, guys. I'll connect with you tomorrow, and we'll have a training on online recruitment. So please join that one as well. Thank you for being here, and take care of yourself, please. Bye bye.